Hello. Today we are talking about another cycle, another very critical cycle, that is sulfur cycle, and it regulates basically life on Earth. It is another biogeochemical cycle that regulates life on Earth, from volcanic eruption to acid rain and microbial transformation. These cycles affect everything from soil fertility to climate. Let's discuss it. First, the sulfur cycle describes the movement of sulfur through lithosphere, atmosphere, and hydrosphere, as well as in the biosphere. It includes both biotic and abiotic process. Sulfur exists in many forms, from gaseous form, that is sulfur dioxide, to sulfate ion in terms of in the form of with the help of soil and water. It is a part of certain amino acids and proteins. Sulfur cycle is basically an oxidation reduction cycle. Soil is the largest reservoir of the sulfur, and another reservoir for the sulfurs are swamps, oceans, Mars, and volcanoes. Sulfur is basically present in three forms in the biosphere. These forms are elemental sulfur, we have inorganic sulfur, and then we have organic sulfur. फर्स्ट एलिमेंटल सल्फर जो अवेलेबल है इन द फॉर्म्स ऑफ सल्फर डिपॉजिट्स एंड सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में. इट is produced by anaerobic bacteria during decomposition, release from volcanoes and combustion of fossil fuels, and can be toxic but also serve as the intermediate in the sulfur cycle. Inorganic sulfur is available as sulfate in aerobic soil environment and as sulfide in the anaerobic soil environment. It is dissolved in soil water and absorbed through the plant roots, most common available form for plant uptakes, and it enters the food chain when plants are consumed. Third one is organic sulfur. It is present in the form of amino acids and plants element residues में amino acids like cysteine and methionine contains organic sulfur. It also presents in proteins, various enzymes, and various multivitamins like biotin and thiamine. It is incorporated by the plants and animals through metabolic processes. So you can simply say कि it is really a very crucial cycle for the environment. And the various sources of sulfur, we have natural resources as well as anthropogenic sources of sulfur. सल्फर्स एटमॉस्फेयर में एंटर होती है थ्रू या तो वॉल्केनिक इरप्शन से, या तो हॉट स्प्रिंग से, या तो किसी ऑर्गेनिक मैटर के डिके होने से, और वेदरिंग जो रॉक्स होती है उनकी वेदरिंग से. ठीक. एंड हर वो ह्यूमन एक्टिविटीज़, जैसे हम सॉइल फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ की जो प्रोसेस है उसमें हमारा यूज़ हो रहा है, उससे आपका प्रोड्यूस हो रहा है सल्फर, एंड यूज़ ऑफ द सल्फेट फर्टिलाइज़र इन एग्रीकल्चर. और ये सारी जितनी भी एमिशंस हैं ना, ये इंक्रीज़ करती हैं किसको, जो भी एसिड रेन्स एंड सॉइल एसिडिफिकेशन में. ठीक. लेट्स डिस्कस फर्दर sulfur cycle. We simply have in general we simply can say you have a atmospheric sulfur dioxide. ये जब organic matters में जा रही है यहाँ से soil से plants में. ठीक. इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं. इसमें नॉर्मली अगर हम इसको देखें ना, तो ये दो ही फेज कंटेन करता है. एक फेज हो गया ट्रांसफॉर्मेशन बायोस्फीयर में कौन सा हो रहा है, और दूसरा ये एटमॉस्फेयर को दोबारा कैसे जा रही है. क्योंकि हम ये कह रहे हैं ये साइकिल है, क्योंकि हर वो चीज़, कोई भी चीज़, हर चीज़ एक साइकिल में वो हो रही है, उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. इट गोइंग थ्रू सम फेजेस
everything is going through certain phases and it is always in a form of cycle. सॉइल में क्या हो रहा है, सॉइल में सल्फर में हमारे पास एक माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक रिडक्शन हो रहा है. सल्फर कन्वर्ट हो जा सॉरी माइक्रोबियल ऑक्सीडेशन में सल्फर कन्वर्ट हो रहा है सल्फेट में, और जो हमारा रिडक्शन है उसमें सल्फेट कन्वर्ट हो जा रहा है अगेन हाइड्रोजन या सल्फाइड्स में. ठीक, प्लांट हमारे नॉर्मली एब्जॉर्ब करते हैं SO4 एंड इसको कन्वर्ट कर देते हैं अमीनो एसिड्स में, जैसे कि हमने देखा था अभी सिस्टीन. और ये एनिमल्स हमारे सीधे सीधे कहाँ से सल्फर को ऑब्टेन करते हैं, बाय कंज्यूमिंग प्लांट्स. यानी सिंपल सा साइकिल है, जब आपके एनिमल्स प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो दे आर बेसिकली इनडायरेक्टली कंज्यूमिंग सल्फर इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स लाइक सिस्टीन एंड मेथोनाइन. एंड अगर हम इसको जनरल कहें तो सॉइल से हमारा रॉक्स में, रॉक से प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में. उसके बाद अब इस साइकिल के बाद जब ये दोबारा एटमॉस्फेयर को रिटर्न हो रहा है तो क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन से. जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इट इज़ अगेन रिटर्निंग सल्फर टू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू वॉल्केनिक इरप्शन ऑल्सो. इंडस्ट्रियल एमिशन ऑल्सो कॉजेज दिस थिंग. एंड ये सिंपली ये क्या करता है, अगर हम सिंपल शब्दों में कहें ना तो ये हमारा सल्फर साइकिल था. अगर हम सिंपल शब्दों में कह रहे हैं, ठीक है, कि हमारा क्या हो रहा है, दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं. एक तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, ठीक, बायोस्फीयर में, और फिर उसके बाद इनका जब डिकम्पोजिशन हो रहा है या अनदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इंडस्ट्रियल एमिशन हो गया या वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, इसकी हेल्प से हमारा दोबारा से वो सल्फर है वो बैक टू एटमॉस्फेयर ट्रांसफ़र हो जा रही है. यानी दोबारा हम इसको देखें ये वाली इमेज को, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ से एटमॉस्फेयर से जो सल्फर है और जो भी वैदरिंग वगैरह की कंडीशन के बाद वो सारा यहाँ जा रहा है प्लांट्स में, प्लांट से जा रहा है प्लांट से जा रहा है एनिमल में. जब वो डिके हो रहा है फिर से आपका वो दोबारा रिटर्न हो जा रहा है किसको, एटमॉस्फेयर को. ठीक, अब इसको थोड़ा सा वैसे देखें, ठीक है, तो इसको दोबारा सेम चीज़ को थोड़ा सा टेक्निकली लिखा है कि एस इन द फॉर्म ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज फॉर्म ड्यूरिंग कंबशन ऑफ, जब हम फॉसिल फ्यूल को कंबस्ट करते हैं या फिर हम क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन परफॉर्म हो रहा है, उस केस में H2S गैस रिलीज होती है. ठीक, एंड देन ये ट्रांसफॉर्म हो रही है H2S में, यानी ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जा रही है एटमॉस्फेयर में. ठीक, अब देखो सिंपली अगेन सेम लाइन रिपीटिंग आई एम हियर कि फ्यू ऑर्गेनिक रिक्वायर सल्फर इन ऑर्गेनिक फॉर्म, जिसको हम क्या करें, वो क्या कर रहे हैं, किसी एमिनो एसिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है. ठीक, इन पॉल्यूटेड वाटर, ये दो बहुत क्रूशियल पॉइंट्स हैं. इन पॉल्यूटेड वाटर H2S इज प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरिया गिविंग डिपोजिट्स ऑफ FeS दैट इज फेरस सल्फाइड, और किसके अंडर एनारोबिक कंडीशंस. ठीक, इन अनपॉल्यूटेड वाटर सल्फर बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म्स सल्फाइड्स इनटू सल्फेट्स. ठीक, एस सल्फर रिटर्न्स बैक टू द एनवायरनमेंट थ्रू द डिके ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स. ये सेम है, हम रिपीट कर रहे हैं इसको. ठीक, द साइकिल एफोर्ड्स एक्सीलेंट, यानी इसमें क्या हो रहा है, इंटरेक्शन इन बायोकेमिकल रेगुलेशन बिटवीन डिफरेंट मिनरल साइकिल्स. अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ सल्फर. अब इंक्रीज, जब सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा इंक्रीज होता है तो इट विल कॉज एसिड रेन एंड सॉइल न्यूट्रिएंट इम्बैलेंस, जिसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, यूट्रिफिकेशन. रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं ह्यूमंस में. एसिड रेन हमारा क्या कर रहा है, एक तो क्रॉप्स को डैमेज करता है, हमारी एक्वेटिक लाइफ और फॉरेस्ट लाइफ को डैमेज कर रहा है. सल्फर साइकिल का एक बार सिग्निफिकेंस देख लेते हैं. सल्फर साइकिल इज अ नेचुरल येट इंक्रीजिंगली ह्यूमन इन्फ्लुएंस प्रोसेस है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, आपने देखा कि एक तो नेचुरल तरीके से सल्फर साइकिल हो रहा है, लेकिन एक हमारे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी सल्फर के साइकिल में चेंजेस आते हैं. ठीक, लेकिन सल्फर हमारा क्या करता है, इट हेल्प्स अस मैनेज सॉइल की फर्टिलिटी मैनेज करने में. इट प्रिडिक्ट्स पोल्यूशन आउटकम्स, इट मिटिगेट्स, इट हेल्प्स अस टू मिटिगेट क्लाइमेट एंड हेल्थ इफेक्ट्स. द सल्फर साइकिल इज एसेंशियल, एक तरीके से ये क्या कर रहा है, इट इज बैलेंसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर इन डिफरेंट रेजर्वॉयर्स. ठीक, सल्फर इज फाउंड इन द नेचर इन कंबाइंड स्टेट एंड with the another element like nitrogen
आयरन और फॉस्फोरस. सो द सल्फर साइकिल से और भी जो हमारे क्या है, और भी आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उनकी अवेलेबिलिटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है. तो दिस वाज ऑल अबाउट द सल्फर साइकिल.